हाय एवरीवन, वेलकम। कैसे हैं आप सब? एक बार देखिए ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या गाइस? गुड इवनिंग, वेलकम टू द पेड क्लास ऑफ इंग्लिश। शुरू करते हैं आज की क्लास को। हरी अप, जल्दी से क्लास में ज्वाइन कर जाएं सभी बच्चे। वेलकम टू द पेड क्लास ऑफ इंग्लिश। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू वोकेबलरी। दिस इज अजय शर्मा एंड वेरी गुड इवनिंग। टुडे वी आर गोइंग टू डू द इम्पोर्टेंट वोकेबलरी विच इज आस्क्ड इन सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल एंड डिफरेंट स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। सो शुड वी स्टार्ट नाउ? एक बार चेक कर लीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड इवनिंग, वेलकम वेलकम वेलकम। चलिए जी, शुरू करेंगे आज के सेशन को, जिसके अंदर हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट वोकेबलरी। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द इंपॉर्टेंट वोकेबलरी। सो वी विल बी डूइंग टू क्विजेज ऑफ spellings and one quiz of synonym antonym and some important English words with mnemonic technique. What is a mnemonic technique? Mnemonic technique is a technique through which you can learn the words with your mind tricks. Different you can connect the words with the pictures and different words and the things that you already know. Okay, so mnemonic technique एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम वर्ड्स को कनेक्ट कर सकते हैं किसी ऐसी चीज के साथ कि वो हमें लंबे टाइम तक याद रहे। क्लियर गाइस? बहुत बढ़िया। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाओ। शाबाश, सुपर फास्ट। फिर शुरू करते हैं सेशन को। चलिए शुरू करें। कुछ बच्चे अभी भी ज्वाइन नहीं किए हैं। बहुत बढ़िया। सो जैसा कि मैंने बताया, टुडे वी आर गोइंग टू डू इंपॉर्टेंट वोकेबलरी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ स्पेलिंग क्विज। सो आई एम गोना डू अ क्विज विद स्पेलिंग। हम स्पेलिंग के थ्रू एक क्विज करेंगे जिसके अंदर आपको कुछ नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। यू विल गेट सम न्यू वर्ड्स टू लर्न and also make the notes. If the word is new and you don't know the meaning of that word, you will also write down the meaning of that word. First of all, you will write quiz 1 spelling in your notebook. Okay, then write the counting up to 5 like this. Okay, now I'm going to start the quiz. I will ask the question number 1. If you know the answer, if you see that the answer number for question number 1 answer is option number A, B, C or D, whatever is your answer, you will write in front of that number. Like your answer is A, like your answer is D, whatever is your answer, you will write in front of this and then write the correct spelling that is in that option. Okay, if after I tell the answer your answer is correct, then you will put a sign of correct, and if your answer is incorrect, you will put a sign of incorrect. Okay, so the very first question is this one. Find the correct spelling. Passenger की इनमें से correct spelling क्या होगी? What will be the correct spelling of passenger? Option A, B, C or D. Find the correct spelling of passenger. Option A, B, C or D. Hurry up, जल्दी से बताएं सभी बच्चे। शाबाश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ज़्यादातर बच्चों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी। Some students are also answering option number A, but option number B is the right answer. Passenger होता है यात्री, a traveler. Passenger is a traveler, one who travels from one place to another place. That is known as passenger. इसे यात्री हिंदी में बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं? ये हिंदी में यात्री बोलते हैं। ओके ओके, सो question number 2. Find the correct spelling of refrigerator. Find the correct spelling of refrigerator. Find the correct spelling of refrigerator. What will be the correct spelling? You have been given four alternatives over here. Find the right answer. Option A, B, C or D. Okay, in comment you will write question number 2. Only write 2. Then write
A, B, C, D, whatever is your answer. Okay, and also write down the counting up to 5 and write the answer in your notebook also. Okay, so that you can check later on what is your score after the quiz is over. So what is the correct spelling of refrigerator? What is refrigerator? बताइए, बताओ बताओ, शाबाश, बहुत बढ़िया. सो करेक्ट स्पेलिंग इनमें से कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. रेफ्रिजरेटर मींस फ्रीज, जो आपने घर में यूज करते हो, जिसमें आप बर्फ जमाते हो, कुल्फी जमाते हो, बाद में रात को आराम से बैठ के खाते हो, उसी को बोलते हैं रेफ्रिजरेटर. समझ में आया? फ्रीज है ना सबके घर में, उसमें बैठते हो. फ्रीज क्या काम आता है? फ्रीज के खोल के अंदर बैठने के काम आता है? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, पानी ठंडा करने के काम आता है. तो बहुत सारी चीजें रख सकते हैं अलग अलग. बहुत बढ़िया, ये वही वाला रेफ्रिजरेटर है. गॉट इट? पैसेंजर होता है ट्रैवलर एंड रेफ्रिजरेटर मींस फ्रीज. क्वेश्चन नंबर 3, कमिटी की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स विच इज आस्क्ड इन द एग्जाम. एग्जाम में पूछे जाने वाली सबसे इंपॉर्टेंट स्पेलिंग में से एक स्पेलिंग है ये. कई बार अलग अलग एग्जाम्स में आ चुकी है. दिस स्पेलिंग हैज बीन आस्क्ड मेनी अ टाइम्स इन डिफरेंट एग्जाम्स. सो यू मस्ट नो द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कमिटी. And this is also a confusing pair of words, pair of letters. तो इसकी कमिटी की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो आपको बतानी है. ऑप्शन ए, बी, सी और डी. ऑप्शन ए, बी, सी और डी. फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग. ऑप्शन नंबर बी, सी. ऑप्शन नंबर बी, सी. क्या बात है? वेरी इंटेलिजेंट, आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट, माइंड ब्लोइंग स्टूडेंट्स. क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त बच्चे हैं. इतने जबरदस्त बच्चे मैंने नहीं देखे जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हैं. यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. सो यू what you have to keep in mind is double M, double T, double E. Everything is double here. Okay, everything is double here. So in committee is a group of members. Committee is a group of members. Members के ग्रुप को कमिटी बोलते हैं. 3, 4, 5 लोग मिलकर के एक ग्रुप बना लेते हैं. That group is known as committee. Got it? Next, find the correct spelling of entrepreneur. This is not entrepreneur, this is entrepreneur. Entrepreneur की correct spelling क्या होगी? What is an entrepreneur? Entrepreneur होता है businessman. कौन होता है? हाँ, entrepreneur. कुछ लोग टीचर बनते हैं, कुछ लॉयर बनते हैं और कुछ entrepreneur बनते हैं. Entrepreneur का मतलब होता है businessman. So what will be the correct spelling for entrepreneur? Entrepreneur की correct spelling इनमें से कौन सी होगी? ऑप्शन ए, बी, सी और डी. Find the correct spelling out of the given options. Write down all the answers in your notebook, and then after the quiz is over, I will ask your score and then you will tell me your score in the comments, okay? Very good, Deepak, Sodha, Lalan, Shiv Shankar, welcome. Shiv Shankar भगवान जी भी आए हुए हैं. रेखा गुप्ता, वेरी गुड. सिद्धार्थ, बहुत बढ़िया. क्या बात है. ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है. एंटरप्रेन्योर में आपको क्या याद रखना है? व्हाट यू हैव टू लर्न इज REPRE. ओके, हियर E is not mentioned. REPRE. PRE is not given. Here RE and PRE is given. Last NEUR. So it is NUER. Option number D is the right answer. Okay, option D is the right answer. Clear? Great job. So till now we have done 4 questions. What is your score out of 4? Hurry up. 4 में से आपका क्या स्कोर है?
ओके, हर्षवर्धन, अपना फिर नाम चेंज कर लो अपनी आईडी के ऊपर आप। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिजनेस। अभी हमने एंटरप्रेन्योर विच इज अ बिजनेसमैन, वी लर्न द स्पेलिंग ऑफ बिजनेसमैन। नाउ कैन यू टेल मी द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ बिजनेस? ये भी एक इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है जो एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है। आज हमने 5 स्पेलिंग, 5वीं स्पेलिंग पे हम पहुंच चुके हैं। व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ बिजनेस? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। हरी अब जल्दी से आंसर करें, सुपर फास्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ज्यादातर बच्चे यहां पर बी आंसर कर रहे हैं। ओके, अभिषेक राज। बट द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, BUSINESS होता है। बिजनेस की स्पेलिंग को याद कर लें। बहुत बच्चों ने गलत की है स्पेलिंग को, SS कर रहे थे बहुत बच्चे, अभी भी करे जा रहे हैं ऑप्शन बी, बट ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। ओके, यस, हरी अप, बहुत बढ़िया, क्या बात है। सो नाउ द क्विज नंबर 1 इज ओवर। सो व्हाट इज योर फाइनल स्कोर आउट ऑफ 5 in quiz number 1 of the spelling? What you have scored? Note down your score and tell me your score in the comments. What you have scored in quiz number 1? We have done 5 spellings. I am going to give an overview of this. Passenger, which means traveler. Refrigerator means freeze. Committee, group of members. The correct spelling is MMITTEE. Entrepreneur, which means businessman. Option D is the right answer. Business, option D is the right answer. यहाँ पे स्पेलिंग अलग लिखी हुई है? नहीं नहीं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तभी मैं सोचूं ये स्पेलिंग इनकरेक्ट है, ये वाली भी इनकरेक्ट है, ये वाली भी इनकरेक्ट है। BUSINESS, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिए इन स्पेलिंग को। अभी तक 5 स्पेलिंग्स हम कर चुके हैं। व्हाट इज योर स्कोर आउट ऑफ 5? ओके, वेरी गुड। Now we will do some synonyms, antonyms also. But before moving to that, I would like to know the very important thing, that is the spelling of grammar. Okay? क्या आप ग्रामर की स्पेलिंग को जानते हैं? क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कराऊंगा। ग्रामर कल से स्टार्ट करेंगे हम, बट उससे पहले ग्रामर की स्पेलिंग तो आपको आती हो। What will be the correct spelling of grammar? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। हरी अब जल्दी से बताइए अपना आंसर, सुपर फास्ट। वेरी गुड रिंकू, अपना आंसर बताओ सबसे पहले। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। कल हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे। वी विल बी स्टार्टिंग आवर फर्स्ट टॉपिक, बट बिफोर दैट यू मस्ट नो द स्पेलिंग ऑफ ग्रामर। बहुत सारे बच्चे इसको भी गलत कर देते हैं। इफ वी आर लर्निंग फ्रॉम बेसिक, वी मस्ट नो द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ग्रामर। हरी अप। वेरी गुड अर्जुन सिंह, योर स्पेलिंग इज, बताऊंगा क्या है थोड़ी देर में। इनकरेक्ट, क्या बात है, अब खुद देखते जाना। वेरी गुड, ए वाले ऑप्शंस की भरमार हो गई है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए किया है उन सभी का आंसर गलत है। आंसर इज रॉन्ग। मुबारक हो, आप सभी का आंसर गलत हुआ। जिन बच्चों ने ऑप्शन ए किया उनका आंसर गलत है। Option A is incorrect. GRAMMA is the right answer. So what is confusing us here? You have to see GRAMMAR or ER. Here you can see E is given and here A is given. A for Ajay sir. Always keep in mind A for Ajay sir teaches us grammar. ऐसे करके याद रखना, GRAMMAR, ए से याद रहेगा। कंफ्यूजन कहाँ होती है कि ई आएगा कि ए आएगा? द कंफ्यूजन इज हियर वेदर वी शुड यूज ई और ए इन द स्पेलिंग ऑफ ग्रामर। सो द राइट आंसर इज GRAMMAR। ओके, ए फॉर अजय सर। अब ये मत पूछ लेना कि अजय सर कौन है, वो मैं कल पूछ के बताऊंगा, ठीक है? GRAMMAR। तो ए से अजय सर याद रख लेना, इससे आपको ये स्पेलिंग भी याद रहेगी। जो बच्चे ये स्पेलिंग कर रहे हैं फिर उनका तो फिर हम कह ही क्या सकते हैं।
इसमें आपको याद रखना है GRAMMAR इज द राइट आंसर. ऑलवेज कीप इन माइंड दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग. आपको कुछ और आए ना आए, एटलीस्ट सबसे पहले इतना तो पता हो कि ग्रामर की स्पेलिंग क्या होती है. ग्रामर तो हम बाद में सीखेंगे. सो दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग फ्रॉम वेरी बेसिक. ओके, हम बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं. सो GRAMMAR इज द राइट आंसर. याद रहेगी अब आपको स्पेलिंग. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द वोकेबलरी. अब हम बिल्कुल बेसिक से वोकेबलरी सीखने वाले हैं. आर यू रेडी? आवाज नहीं आ रही आपकी. आर यू रेडी? सो वी आर गोइंग टू लर्न वोकेबलरी फ्रॉम वेरी बेसिक एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रिक. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस वर्ड. तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें आपको एक बार नोट नहीं करना है कुछ भी, सिर्फ समझना है. नोट कब करेंगे आप? रिकॉर्डिंग देखते हुए नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. स्क्रीनशॉट लिया और उसको नोट कर लिया. ओके, तो या तो मैं ऐसे करता हूं कि आपको थोड़ा टाइम दे देता हूं नोट करने के लिए. तो नोट करने में आपको क्या नोट करना होगा? अगर आप बच्चे ज़्यादा कुछ कह रहे हैं कि हमें नोट करना है, तो द पर्सन हु वांट टू नोट दिस वन, दिस मीनिंग इफ यू वांट, दिस मीनिंग, 2 synonym and 2 antonyms. At least you know this one. Okay? But I will give the time at the end of the session, or should I give the time right now? Okay. जल्दी से नोट करिए इसका मीनिंग. रैम्पेंट. जल्दी से वर्ड लिखें, इसका मीनिंग लिखें और 2 सिनोनिम और 2 एंटोनिम लिखें. फिर इसको हम करते हैं जल्दी से, क्योंकि अगर मैं लिखने का टाइम नहीं दूंगा तो भी लिखना तो है ही. इतना तो मैं बताया, तो मैं समझा रहा हूँ तो भी लिखना ही है. इतना तो मेरे को पता ही है. समझ आए ना आए, लिखना जरूरी होता है. ये बच्चों की हैबिट हो चुकी है. सो लिख लीजिए आप फटाफट से. सिर्फ 30 सेकंड दे रहा हूँ नोट करने के लिए. सुपर फास्ट नोट कर दें. रैम्पेंट का मीनिंग और सिनोनिम एंटोनिम दो ही नोट कर रहे हैं. ओनली नोट 2 सिनोनिम एंटोनिम्स ओनली. Now we are going to do vocabulary. The first word is rampant. I hope you have noted it down. अगर आपने नोट कर लिया है, then write noted, so that we can learn this word. Very good Saksham. बहुत बढ़िया. कुछ बच्चों ने स्पीडली कर लिया है नोट. हाँ, जो रिकॉर्डिंग से नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. स्क्रीनशॉट लेकर के उसको आप सेव करके लिख भी सकते हैं. बट ऐसा है कि अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप नोट करिए. कई बहुत ही स्लो लिखने वाले होते हैं, तो वो अपना पूरा समय लिखने में बर्बाद ना करें. आप समझ लें, रिकॉर्डिंग देखते हुए बाद में सेम लिंक से आप रिकॉर्डिंग भी देख पाएंगे. तो यू कैन नोट डाउन बाय वॉचिंग द रिकॉर्डिंग. आई होप दिस इज इनफ टाइम. Noted? Okay, let's learn this word rampant. अभी कोई बच्चा नोट कर रहा है तो एक बार छोड़ दो उसको, क्योंकि ये वीडियो कहीं नहीं जाएगी, आपके पास ही रहेगी जब तक आपके पास सब्सक्रिप्शन है, जब तक आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं. rampant. मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में रिपीट करूंगा. आई विल रिपीट दिस इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी. देयर वाज अ बॉय हुज नेम वाज राम. एक लड़का था जिसका नाम था राम. उसकी पैंट बहुत ही लूज थी. ऐसा होता है ना, कई लोग बचपन में ऐसा होता है, पैंट बहुत लूज होती है, ऐसे पकड़ के घूमते रहते हैं. थोड़ी सी देर होती है ऐसे ऐसे खींचते रहते हैं, थोड़ी सी देर होती है ऐसे खींचते हैं, थोड़ी सी देर होती है ऐसे खींचते हैं. हुआ क्या, राम नाम का लड़का, उसे स्टेज पे चढ़ने से बड़ा डर लगता था. ही वॉज fear of public speaking. He has a fear of public speaking. So one day he was invited for a speech and he forgot to wear his belt. वो अपना बेल्ट डालना भूल गया जिस दिन उसको स्पीच के लिए बुलाया गया था. एंड उसकी जो पैंट थी that was very loose. He was wearing the pants that was very loose.
ही वेंट ऑन टू द स्टेज, स्टेज पे गया, उसने माइक पकड़ा, एक हाथ से पेन पकड़ी, एंड ही स्टार्टेड हिज स्पीच। जैसे ही वो थोड़ा सा नर्वस हुआ, उसने दोनों हाथों से माइक पकड़ा और उसकी पेंट हो गई अनियंत्रित। तो राम की पेंट क्या हो गई? अनियंत्रित। कैसे याद करेंगे, बोलो एक बार। राम्स पेंट वॉज अनकंट्रोल। राम की पेंट क्या हो गई? अनियंत्रित। जैसे ही माइक को दोनों हाथों से पकड़ा, राम की पेंट अनियंत्रित हो गई। जिस लड़के का नाम राम था, उसने जो पेंट पहनी हुई थी वो बड़ी लूज थी, और राम की पेंट क्या हो गई? अनियंत्रित। राम्स पेंट वॉज अनकंट्रोल। अनकंट्रोल इज द सिनोनिम ऑफ दिस। अनब्रिडल्ड, ब्रिडल होती है लगाम, unbridled is the synonym widespread, pandemic, endemic, sorry, epidemic. Now antonyms are moderate, tempered, brittle, constrained और controlled. इनमें से कोई भी दो दो याद कर सकते हैं. Only two out of these synonyms and antonym you have to learn. Okay? So एक बार सभी बच्चे बोलेंगे, राम की पेंट क्या हो गई? Uncontrolled. Ram's pants was uncontrolled. ओके, राम की पेंट क्या हो गई? अनियंत्रित। राम्स पेंट्स वॉज अनकंट्रोल। आपने देखा होगा कभी कुछ मीठा रख दो आप, तो वहां पर बहुत सारी आंट्स आ जाती है ना? वहां पर बहुत सारी आंट्स आ जाती है। राम्स पेंट्स वॉज अनकंट्रोल। तो हम कैसे याद रखेंगे कि राम की पेंट अनियंत्रित होगी? जब हम कुछ मीठा रख देते हैं तो वहां पे बहुत सारी चींटियां आ जाती है। ओके, सो ऑन स्वीट आइटम देयर लोड्स ऑफ आंट्स कम्स, और वो अनकंट्रोल हो जाती है ना? आती जाती है, और वहां जब तक वो रहेगा ना मीठा, वहां तक वो आती रहेगी। देखा होगा ना, दैट इज अनकंट्रोल। सो दीज आंट्स आर रैम्पेंट। जल्दी से बोलिए, दीज आंट्स आर रैम्पेंट। ओके, नोटेड, वेरी गुड। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज रैम्पेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है रैम्पेज। रैम्पेज का क्या मतलब होता है? बहुत ही गुस्से में भर जाना। नोट कर लो फटाफट से, जल्दी से, हरी अप, सुपर फास्ट नोट कर लो। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, नोट करने का टाइम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अगर आप सभी की राय है यस, तो कैपिटल लेटर में यस का जवाब आए। नहीं देना चाहिए तो नो का जवाब आए सभी बच्चों का कमेंट में। शुड आई गिव सम टाइम टू नोट डाउन दीज वर्ड्स? देन राइट यस इन द कैपिटल लेटर, और अगर आपको नहीं चाहिए टाइम, देन राइट नो। हरी अप, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। Hurry up, then note it down. ओके, ज़्यादातर बच्चों का नो आ रहा है, कुछ बच्चों का यस भी आ रहा है। ओके, सो आई थिंक आपको क्लास के बाद ही नोट करना चाहिए फिर, ठीक है? जो कम टाइम में 30 सेकंड में नोट कर ले वो कर ले। You are to just note down that word, meaning, any of the one meaning, and any of these two synonyms and these two antonyms जो आपको आसान लगे. If you can remember all, तो सबसे अच्छी बात है. छोटे बच्चे होते हैं, क्लास में पढ़ रहे होते हैं, तो उनकी आपस में ना लड़ाइयाँ बड़ी होती है. सर मेरा इसने इरेजर छीन लिया, सर इसने मेरी कॉपी का पेज फाड़ दिया. तो ऐसे ही क्या होता है, एक राम नाम का लड़का होता है. किस नाम का होता है? राम नाम का लड़का होता है. तो वो है ना किसी की कॉपी का पेज फाड़ देता है ना. तो वो भाई बहुत ही गुस्से में हो जाता है. तो राम ने उसकी कॉपी का पेज फाड़ दिया, इसीलिए वह क्रोध और आपे में भर गया, उसने आपा खो दिया. तो कैसे याद रखेंगे? राम ने उसकी कॉपी का पेज फाड़ दिया है, इसीलिए वह बहुत ज्यादा गुस्से में भर गया. तो रैम्पेज का मतलब होता है गुस्से में होना, वाइल्ड हो जाना, वायलेंट हो जाना, दंगा फसाद करने लग जाना. ओके, yes, you can take the screenshot. So I'm going to give all the words together. So try to note down
rest of the English class by watching the recording or by taking the screenshot and then noting it down later on. Okay, so rampage का मतलब क्या होता है? गुस्से में भर जाना. राम ने उसकी कॉपी का पेज फाड़ दिया, इसलिए वह गुस्से में भर गया. Okay, Ram has teared the page of that person's notebook. Ram has teared the page of that person's notebook. So that's why he is in an uncontrolled manner or he is very angry. So if someone is very angry, then you can say he is rampage. He is creating rampage. Rampage means violent. कुछ दंगा फसाद करना, riot करना. Ram has teared the page of someone's notebook. That's why he is very angry. So synonyms are riot, berserk, out of control in anger, wild and violent. Wild जंगली हो जाना, रियोट दंगा फसाद करना, बरसर्क होता है गुस्से में आपा खो देना. ओके, वॉयलेंट हो जाना, आतंकी हो जाना. एंटोनिम्स आर काम, शांत, कंपोजर, जो बिल्कुल शांत हो, हैप्पीनेस, पीस. दीज आर द एंटोनिम्स. काम, पीस. ओके, दीज आर द एंटोनिम्स. ओके, यस, फ्री फायर रैम्पेज बोल दो. रैम्पेज मीन्स हंगामा करना, शोर शराबा मचाना, क्रोध में, गुस्से में लाल पीला होना, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे इसकी तरह. तो दैट इज रैम्पेज. गॉट इट? फर्स्ट वर्ड इज रैम्पेंट. राम की पैंट अनियंत्रित होगी. सभी बोलेंगे राम की पैंट अनकंट्रोल होगी. राम्स पैंट वॉज अनकंट्रोल्ड. नेक्स्ट, रैम्पेज. Ram has teared his page, so the person is very angry. राम ने उसकी कॉपी का पेज फाड़ा, इसीलिए वो बहुत ही एंग्री हो गया. नेक्स्ट इज रैम्पर्ट. व्हाट इज रैम्पर्ट? व्हाट इज रैम्पर्ट? पहले राजा महाराजा रहते थे तो उनकी जो दीवारें होती थी वो किले बंदी करवाते थे. बड़ी बड़ी दीवारें, जैसे इतना आज हमारा जितना बड़ा रूम होता है ना, जितना बड़ा एक रूम होता है, हॉल होता है, उतनी चौड़ी चौड़ी दीवारें होती थी, इतनी वाइड दीवारें होती थी. Okay, they used to have huge walls around their area where they used to live. Okay, so that is known as rampart. rampart होता है किला बंदी करना, चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बनाना. अभी कोई बच्चा नोट नहीं करेगा, एक्स्ट्रा कमेंट्स नहीं करेगा, कोई बच्चा आपस में चैटिंग नहीं करेगा. ओके, फिर से बोल रहा हूं. रैम्पर्ट, राम ने अपने पार्ट्स की सुरक्षा के लिए किले बंदी करवा ली, दीवारें बनवा ली. जो पीछे है ना, वो पेज फाड़ के नहीं आया था राम, उसके बाद ये गुस्से में भर गया था, ऐसे आतंकी मचाने लग गया था. फिर राम ने क्या किया? राम ने बड़ी बड़ी दीवारें बनवा ली. राम नाम का पर्सन था ना, उसने बड़ी बड़ी दीवारें बना ली, चारों तरफ किले बंदी कर दी ताकि कोई अंदर ना घुस सके. तो राम ने अपने पार्ट्स की सुरक्षा के लिए किलेबाजी कर दी. किले बंदी करना, चारों तरफ से कवर कर देना. सो रामपर्ट. तो राम हैज बिल्ड वाइल्ड walls, defensive walls around his area. Okay, it means to wall the city. Fortify karna, it is also known as fortify, which means to make a huge and defensive wall around the area that you want to protect from your enemy. Okay, what are the synonyms? Bulwark, earthwork, embankment, fortification. Synonyms are aid, help, opening. एंटोनिम्स हो जाएंगे इसकी हेल्प करना, ओपनिंग करना किसी चीज की. एंड सिनोनिम्स आर अर्थवर्क, एम्बैंकमेंट एंड फोर्टिफिकेशन. फोर्टिफिकेशन होता है किलेबंदी करना. सो टिल नाउ वी हैव डन 3 वर्ड्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो लेट्स गो टू दिस वन हियर. रैम्पेंट. एक बार बोलेंगे, राम की पैंट क्या हो गई? अनियंत्रित हो गई. राम्स पैंट वॉज अनकंट्रोल. नेक्स्ट वन, राम हैज टीयर्ड हिज पेज, so that's why he is very angry. so राम ने उसकी कॉपी का पेज फाड़ा, इसीलिए वो ही एंग्री है, ऐसा दिख रहा है. रामपर्ट, राम ने अपने पार्ट्स की सुरक्षा के लिए किलेबंदी करवाई, डिफेंसिव वॉल बनाई. ओके, तो इस राम नाम के एक लड़के ने क्या किया? अपने एरिया की सुरक्षा के लिए डिफेंसिव वॉल्स बनाई. सो रामपर्ट मीन्स डिफेंसिव वॉल. Noted. Next, object.
ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्जेक्ट। किसी बच्चे को नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वेदर टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन नोट डाउन लेटर ऑन बाय वॉचिंग द रिकॉर्डिंग्स। ओके, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स बहुत ही दयनीय हालात में होना, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट एंड डिग्रेडिंग, किसी चीज का अनप्लीजेंट हालात में होना, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट सिचुएशन में होना। ऑब्जेक्ट मीन्स बहुत ही दयनीय हालात में होना, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। ओके, वेरी डिजेक्टेड, पिटीफुल, मिजरेबल एंड होपलेस। सो हियर दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट नाउ माई जैकेट इज इन वेरी पुअर कंडीशन। तो समथिंग विच इज इन वेरी पुअर कंडीशन, अभी फटने ही वाली, मतलब कई बार ऐसा होता ना कि जैकेट बहुत पुरानी हो गई है, फटने ही वाली है, पुअर कंडीशन, दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को जैकेट से याद रखो। अब जैकेट, ऑब्जेक्ट को कैसे याद रखेंगे? अब जैकेट, ऑब्जेक्ट को कैसे याद रखेंगे? अब जैकेट बहुत ही बुरे हालात में पहुंच गया, इन अ वेरी पुअर कंडीशन। When your jacket is in very poor condition, you are objected. तब आप बहुत ही ऑब्जेक्ट होते हैं, बहुत ही डिजेक्टेड होते हैं, बहुत ही निराश होते हैं। Noted? Next, ruminate. Ruminate का मतलब होता है चिंतन करना। Yes, ruminate means चिंतन करना, सोच विचार करना। ओके, फिर से बता रहा हूं, नोट करने का टाइम अभी मैं नहीं दे रहा हूं। नोट करने के लिए आप रिकॉर्डिंग देख करके नोट कर लेना बाकी के वर्ड्स, और वेदर यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। 3 फिंगर मारिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट लिया जाएगा, बात खत्म। रूमिनेट, वह अपने रूममेट के साथ बैठ करके चिंतन कर रहा है। रूमिनेट, वह अपने रूममेट के साथ बैठ के रूमिनेट कर रहा है, चिंतन कर रहा है। तो रूमिनेट मीन्स चिंतन करना। थिंक डीपली अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में डीपली सोचना। ओके, next, tinker. Okay, let's do the synonyms. Muse, brood, contemplate, consider. Okay, with his roommate he is thinking deeply about some problems. So when you are thinking deeply about something, you are brooding at that time, you are contemplating, you are musing, you are considering, you are ruminating. Okay, ruminate means चिंतन करना, सोच विचार करना। when you are busy, when you are with your roommate and you are thinking deeply, तब आप चिंतन कर रहे होते हैं। okay, with his roommate he is thinking deeply about the problems. with his roommate he is thinking deeply. ruminate, roommate, ruminate, 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 roommate, बोला करो साथ में। इफ यू विल स्पीक विद मी, स्पीक आफ्टर मी, यू विल बी एबल टू लर्न दीज वर्ड्स विद फॉर अ लॉन्गर टाइम। नेक्स्ट इज टिंकर। टिंकर, टिंकर मीन्स होता है ठीक करना। तो एक बार ये टैंकर आया हुआ था, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई और यहाँ से ब्रेक हो गया एंड द फ्लूइड कमिंग आउट ऑफ दिस टैंकर। तो वी ट्राई टू टिंकर इट। व्हेन दिस टैंकर ब्रोकन अप, सम water or some fluid will come out of it, but we will try to tinker it. टैंकर जब टूट जाएगा then we will try to tinker it. टैंकर को टिंकर कर दिया, ठीक कर दिया, टैंकर को ठीक कर दिया। एक बार सभी बच्चे बोलेंगे टैंकर को टिंकर कर दिया, ठीक कर दिया। वंस अगेन, टैंकर को टिंकर कर दिया। ओके, टिंकर को टैंकर को टिंकर कर दिया, टैंकर को। ओके, टैंकर इज नाउ टिंकर्ड, इट मीन्स टैंकर इज क्योर्ड, टैंकर इज मेंडेड। फिडल मीन्स ठीक करना, मेंड मीन्स ठीक करना, डूडल मीन्स ठीक करना, रिपेयर्ड। ओके, इफ यू आर रिपेयरिंग द टैंकर, इट मीन्स यू आर टिंकरिंग द टैंकर। इफ यू आर रिपेयरिंग द टैंकर, इट मीन्स यू आर टिंकरिंग द टैंकर। सो टैंकर से टिंकर याद रखेंगे, टैंकर से टिंकर। ओके, now next one, aftermath. Aftermath means result of something, परिणाम, consequence. okay, aftermath, हम मैथ का एग्जाम दे रहे हैं एंड आफ्टर मैथ
वी विल गेट द रिजल्ट। मान लीजिए आपका एग्जाम चल रहा है, तो आपसे कोई पूछता है कि आपका रिजल्ट कब आएगा, तो आप बोलते हो आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ आई विल गेट माई रिजल्ट। सो आफ्टर मैथ मीन्स आउटकम ऑफ समथिंग, सो आफ्टर मैथ मीन्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनीथिंग, परिणाम, रिजल्ट। हम बहुत ज़्यादा पेड़ काट रहे हैं, हम हमारी अर्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, एंड द आफ्टर मैथ इज दिस। ओके, सो आफ्टर मैथ्स मीन्स रिजल्ट ऑफ समथिंग। जो बच्चा नोट कर रहा है ना, उसको लगेगा पाप। पाप कहां से लगता है और कैसे लगता है वो मैं कल बताऊंगा। पाप बहुत ही खतरनाक चीज होती है, तो मैं फिर से कह रहा हूं, नोट मत करो साथ के साथ, क्योंकि सभी बच्चों का डिसीजन यही था कि नोट नहीं करेंगे सर साथ के साथ, बाद में नोट कर लेंगे। ओके, वंस अगेन, आफ्टर मैथ मीन्स परिणाम, आफ्टर मैथ अ रिजल्ट विल कम, after math a result will come, so after math means result, result, outcome, and end result. Consequence is also known as parinam. Antecedent, causation, cause, occasion, reason, these are the antonym of aftermath. Next one, stampede. Stampede का मतलब होता है भगदड़ मचना। Do you know what is भगदड़? देखिए ऐसी होती है, पहले देख लो भगदड़ क्या होती है। जब आप किसी के सर के ऊपर पांव रख करके भागे, है ना। एक और मुहावरा भी है हिंदी में, अपने सर पे पांव रख के भागना, वो अलग होता है। लेकिन आप जब किसी के सर पे पांव रख करके भागें तो उसे बोलते हैं स्टैम्पेडे। स्टैम्पेडे का मतलब होता है सडन पैनिक्ड रश। ओके, when you are watching a movie and the theater is full of the people and you say suddenly that there is a bomb, 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 so सभी लोग सर पे पांव रख करके भागेंगे। कौन किसके सर पे पांव रख रहा होगा पता नहीं। so that is known as भगदड़, sudden panic rush. so stampede means, what is the meaning of stampede? भगदड़ मचना, पैनिक्ड रश। स्टाम्प खरीदते वक्त भगदड़ मच गई, कुछ लोग स्टाम्प खरीदने के लिए गए थे और वहां पे भगदड़ मच गई। ओके, सो स्टैम्पेडे मीन्स भगदड़ मचना। स्टाम्प पता है क्या चीज होती है? मोहर होती है ना। हाँ, स्टाम्प हिंदी में बोला जाता है उसको, स्टैम्प ही इसको बोला जाता है इंग्लिश में। तो स्टाम्प क्या चीज होती है? जिसको मोहर बोलते हैं, प्योर वर्ड उसका मोहर होता है, और उसको स्टाम्प बोलते हैं, स्टाम्प पेपर, है ना। इंग्लिश में इसको स्टैम्प बोलते हैं और इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है स्टैम्पेडे। ओके, हाँ, तो स्टाम्प खरीदने के लिए बहुत सारे लोग गए थे और वहां पे भगदड़ मच गई। गॉट इट? सो इट मीन्स पैनिक, स्मैश, रश और राउट। पैनिक, स्मैश, रश और राउट। नोटेड? वेरी गुड। नेक्स्ट इज डिलीजेंट। नेक्स्ट वर्ड इज डिलीजेंट। तो सभी बच्चे बोलेंगे दिल्ली के जेंट्स बड़े ही मेहनती होते हैं। वंस अगेन, द जेंट्स ऑफ दिल्ली आर वेरी हार्ड वर्किंग। फिर से बोलें, दिल्ली के जेंट्स बड़े ही मेहनती होते हैं। एंड द जेंट्स ऑफ दिल्ली आर वेरी हार्ड वर्किंग। वेरी गुड, इट मीन्स हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस एंड लेबोरियस। वंस अगेन सभी बोलेंगे, ओके, वेरी गुड। सो दिल्ली के जेंट्स क्या होते हैं? मेहनती होते हैं। तो हम कैसे याद रखेंगे? जेंट्स ऑफ दिल्ली आर वेरी हार्ड वर्किंग। ओके, नोटेड? हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रीज। नोट तो करना ही नहीं एक्चुअली। दिल्ली के जेंट्स क्या होते हैं? मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट इज इंडिजेंट। इंडिजेंट का मतलब होता है पुअर। इंडिया के जेंट्स शादी के बाद गरीब हो जाते हैं। क्या बात है! इंडिया के जेंट्स शादी के बाद गरीब हो जाते हैं। द जेंट्स ऑफ इंडिया बिकम पुअर आफ्टर द मैरिज। क्या बात है! एक बार फिर से बोलेंगे, इंडिया के जेंट्स शादी के बाद क्या हो जाते हैं? एंड द जेंट्स ऑफ इंडिया बिकम्स पुअर आफ्टर दे गेट मैरिड। फिर से याद करें, इंडिया के जेंट्स शादी के बाद, जेंट्स ऑफ इंडिया बिकम्स पुअर व्हेन दे गेट मैरिड। ओके, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। Great job. So poor, penniless, homeless and pauper, these are the synonyms. Poor, penniless, homeless and pauper, these are the synonym. इंडिया के जेंट्स शादी के बाद गरीब हो जाते हैं। We have learned these words. Okay.
So once again we go to here. You have learned this one. राम की पैंट क्या हो गई थी? Pants of Ram was uncontrolled. राम ने पेज फाड़ा इसलिए वो गुस्से में भर गया था, है ना. राम हैज टीयर द पेज. रैम्पेज मीन्स वाइल्ड होना, क्रेजी होना. राम ने अपने पार्ट्स की सुरक्षा के लिए डिफेंसिव वॉल बनाई. सुरक्षा बनाना, किलेबंदी करना. अब जैकेट बहुत ही पुराना हो गया, पुअर कंडीशन में पहुंच गया. ऑब्जेक्ट मीन्स वेरी पुअर कंडीशन. रूमिनेट, टू थिंक ओवर समथिंग. With his roommate he is ruminating. With his roommate he is ruminating. Tinker. Okay, what is tinker? Tinker से कैसे याद रखेंगे? ठीक करना. तो कैसे याद रखा जाएगा? Yes. Tinker, tanker को क्या कर दिया गया? Tinker कर दिया गया. After math, after math a result will come. After math a result will come. So after math means result and parinam. Stampede. Okay, some people were purchasing stamp and they are created a stampede. Sudden panic rush को बोलते हैं stampede. भगदड़ मच जाना. दिल्ली के जेंट्स क्या होते हैं? इंडिया के जेंट्स शादी के बाद, क्या बात है, बहुत बढ़िया. गुफा, गुफा से जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही है. एक बार फिर से, गुफा से जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही है. गुफा का मतलब होता है जोर जोर से हंसना. गुफाओं में से जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही है. तो गुफा का मतलब होता है जोर जोर से हंसना. गुफा से जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही है. गुफा का मतलब क्या होता है? जोर जोर से हंसना. ओके, वेरी गुड, ग्रेट जॉब. सो नाउ इट्स योर टर्न. आई हैव गिवन यू सम क्वेश्चंस. क्विज नंबर 2. हरी अप, सुपर फास्ट क्विज है ऑफ द सिनोनिम्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आफ्टरमैथ? What is the meaning of aftermath? Repeat करना, shorten करना, result करना, calculation करना. Find the synonym. Synonyms means समानार्थक शब्द. What will be the synonym of aftermath? Repeat, shorten, result and calculation. Very good, very good, very good. बहुत बढ़िया. So your answer is option number C. Aftermath or result will come. 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 ऐसे करो, याद हो जाएगा आपको. नेक्स्ट वन, रिपीट का मतलब होता है रिपीट करना. शॉर्टन मीन छोटा, कैलकुलेशन कुछ कैलकुलेट करना. नेक्स्ट वर्ड इज इंडिजेंट. इंडिया की जेंट शादी के बाद रिच नहीं, शॉर्ट नहीं, पुअर. इंडिजेंट मीन्स पुअर. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. इफ योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, देन इट इज करेक्ट. वेरी गुड, यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब गाइज. बहुत बढ़िया, सुपर फास्ट. सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें फिर, और चैनल को सब्सक्राइब करें. नेक्स्ट इज दिस वी हैव नॉट डन टिल नाउ. दिस वी हैव डन. व्हाट इज स्टैम्पेडे? फाइंड द राइट आंसर. वेरी गुड, वेरी गुड. व्हाट इज स्टैम्पेडे? स्टाम्प खरीदते वक्त सब लोग क्या हो गए थे? फाइंड द राइट आंसर. यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. पैनिक. ओके, स्टैम्प खरीदते वक्त लोग क्या हो गए थे? पैनिक हो गए थे. स्टैम्पेडे मीन्स पैनिक. वेरी गुड. नेक्स्ट वन, दिल्ली के जेंट्स. डिलीजेंट. दिल्ली के जेंट्स डिलीजेंट. बताइए शाबाश. Yes, hardworking is the right answer. Option D is the right answer. Great job. Next is rampant. राम की पैंट. Rampant. राम की पैंट क्या हो गई थी? राम नाम के लड़के की पैंट क्या हो गई थी? राम नाम के लड़के की पैंट. Very good. नेक्स्ट इज राम पार्ट. राम ने अपनी पार्ट की. राम ने अपने पार्ट्स की प्रोटेक्ट किया. प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा करना. सो रैम्पर्ट मीन्स सुरक्षा करना, प्रोटेक्ट करना. नोटेड और याद भी हो गए हैं साथ में. रैम्पेज.
व्हाट इज रैम्पेज? व्हाट विल बी द सिनोनिम ऑफ रैम्पेज? क्या बात है, इतने इंटेलिजेंट बच्चे नहीं देखे मैंने, एक ही दिन में इतने सारे वर्ड और इतने बढ़िया बढ़िया वर्ड फटाफट से याद कर लिए, और आंसर भी मुझसे भी तेज दे रहे हैं। रैम्पेज का क्या मतलब होगा? एंगर। राम ने अपना पेज फाड़ा, राम के ने उसका पेज फाड़ा, इसलिए वो एंगर ही हो गया था, एंगर में भर गया था। हील होती है एड़ी, आपके पैरों में देखो होगी। हील मतलब होता है ठीक होना किसी चीज का, ठीक होना। हैप्पी मतलब खुश, जो अभी हो गए हैं वो कैब लर्न करके आप। ओके, बहुत बढ़िया। सो ग्रामर की स्पेलिंग याद हो गई है, GRAMMAR, ये अब याद रखनी है ताकि कल हम शुरू करें तो आपको प्रॉब्लम ना आए। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट वर्ड दैट वी हैव कवर्ड टिल नाउ। टोटल हम 7 क्वेश्चन कर चुके हैं, राइट? इसमें से 7 इन क्विज नंबर सेकंड वी हैव डन 7 क्वेश्चंस। व्हाट इज योर स्कोर आउट ऑफ 7? एंड इन टोटल वी हैव डन 12 MCQs इन दिस करंट क्लास। 13? ओके, 13 छोड़ तो दिया था, लेकिन इन दोनों की नंबरिंग सेम है ना, 7 और 7। ओके, वो हो गया था ऐड, और एक और 13 टोटल हो गया ना। सो व्हाट इज योर स्कोर आउट ऑफ 13? ये लिख देते हैं। What is your score out of 13? And do one thing, make a report page in your notebook. Like you can choose the last page of your notebook, okay, and there note down your score with the date. आज जुलाई कितनी है? 5 जुलाई है, तो लिख लीजिए on 5th of July I scored total out of 13। कितना स्कोर आपने किया है वो नोट कर लेना है। सो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।